بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان برہان علی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہم آواز کی دوسری قسط۔ ہم نے ہم آواز کے نام سے یہ پروگرام کا آغاز کیا تھا، جو کہ ہم نے اسپیسیفکلی پرسنز ود ڈفرینٹ ایبیلٹیز کے لیے، یعنی کہ افراد باہم معذوری کے لیے، ان کے حوالے سے آگاہی مہم کے طور پر ہم نے اس پروگرام کا آغاز کیا تھا۔ جو ہمارا فرسٹ ایپیسوڈ جو براڈ کاسٹ ہوا تھا، اس کے حوالے سے ہمیں بڑا پازیٹیو فیڈ بیک ملا ہے عوام کی طرف سے، پرسنز ود ڈفرینٹ ایبیلٹیز کے کمیونٹی کی طرف سے، سماجی جو تنظیمیں ہیں ان کی طرف سے، اور تمام لوگوں نے بہت اپریشیٹ کیا ہے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ آج ہم اپنے دوسرے ایپیسوڈ کی طرف جا رہے ہیں، اور جس طرح سے ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں آپ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم یہاں پر ان سٹیک ہولڈرز کو بلائیں گے جن کے جو پرسنز ود ڈفرینٹ ایبیلٹیز کے لیے کام کر رہے ہیں، ان کے لیے پالیسیز کو ڈیولپ کر رہے ہیں، ان کی پالیسیز کی امپلیمنٹیشن کر رہے ہیں، یا ایسی تنظیمیں جو پرسنز ود ڈفرینٹ ایبیلٹیز کی فلاح و بہبود کے لیے کام کر رہے ہیں، تو ان کو ہم دعوت دیں گے۔ آج ہمارے ساتھ جو شخصیت یہاں پر اسٹوڈیو میں موجود ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں، میرے خیال میں کہ کسی تعریف کے محتاج نہیں ہیں۔ محترم کا نام محمد بلال ہے، اور ان کی بھی ایک تنظیم ہے رائٹ ٹو لیو آرگنائزیشن کے نام سے، جو خالصتاً پرسنز ود ڈفرینٹ ایبیلٹیز کے فلاح و بہبود کے لیے کام کر رہی ہے۔ محمد بلال صاحب یہ فارمر ڈائریکٹر کرکٹ آپریشن رہ چکے ہیں پاکستان بلائنڈ کرکٹ کونسل کے، اور کرنٹلی یہ ایک گورنمنٹ ٹیچر بھی ہیں۔ تو آئیے جانتے ہیں محمد بلال صاحب کی زبانی۔ بلال صاحب، سب سے پہلے ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ہم آواز کے پلیٹ فارم پر۔ کیسے ہیں آپ سر؟ بہت شکریہ، میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، اور بالخصوص ہزارہ ایکسپریس نیوز کا یہ بہت اچھا اقدام ہے جو کہ ہم آواز کے نام سے آپ لوگوں نے یہ پوڈ کاسٹ اسٹارٹ کیا ہے۔ جی جی یقیناً اس کا بہت بڑا امپیکٹ ہوگا۔ ایک چیز میں آپ کو بتاتا چلوں جی جی کہ یہ جو آغاز ہوا تھا 1981 میں، ایک ڈسیبلٹی آرڈیننس آیا تھا، پرسن ود ڈسیبلٹیز امپاورمنٹ آف پرسن ود ڈسیبلٹیز آرڈیننس جو تھا 1981 میں یہ آیا، اور آج تک اس ملک کے اندر اس کے اوپر مختلف صوبوں کے اندر لیجسلیشن ہوئی، انہوں نے اپنے ایکٹس بنائے، اور اس کے ساتھ اس کی وجہ سے ایک پورے ملک کے اندر ایک تحریک پیدا ہوئی افراد باہم معذوری کے حوالے سے۔ تو اسی کی بنا پر پھر مختلف قسم کی سہولیات آئیں، جیسا کہ افراد باہم معذوری کو ملازمتوں کے اندر خیبر پختونخوا کے اندر 2% کوٹا ان کے ملازمتوں میں ہے، اور یہ کوٹا دیگر صوبوں میں ہے۔ پنجاب میں 3%، بلوچستان اور سندھ میں یہ 5% ہے، اور وفاق میں بھی یہ 2% ہے۔ 2%۔ تو اور اس کے لیے بھی سب سے پہلے آپ کے پاس ایک ڈسیبلٹی سرٹیفکیٹ ہونا ضروری ہے۔ تو اس کے بعد پھر آپ 2% کوٹا اویل کر سکتے ہیں۔ اوبویسلی اس میں اب مختلف جابز ہیں جو کہ اسکیل 1 سے لے کے اسکیل 21 تک کی جابس کے لیے ایکول آپ ایلیجیبل ہوتے ہیں۔ اب اس کا جو بھی کرائٹیریا اس پوسٹ کے لیے ریکوائرڈ ہے وہ پرسن ود ڈسیبلٹی کو پورا کرنا ہوگا۔ بالکل۔ اس کے ساتھ ایجوکیشن پرسن ود ڈسیبلٹی کی جو ہے وہ PhD تک، ہائر ایجوکیشن تک مفت ہے۔ اس میں اگر آپ یونیورسٹیز کے اندر دیکھیں آپ، تو یونیورسٹی کے اندر جتنی بھی فیسلٹیز ہیں، ان کی ٹرانسپورٹیشن ہے، ان کے ہاسٹل کی فیس ہیں، ان کی باقی یوٹیلیٹی بلز یونیورسٹی کے اندر ہیں، یہ ایکسمپٹڈ ہیں۔ پھر آپ کے لیے PWDs کے لیے جو ہے ریزرو سیٹس ہیں، MPhil PhD BS لیول پہ، ایون اب تو انٹرمیڈیٹ لیول پہ بھی ان کے لیے ریزرو سیٹس ہیں، جو ہمارے ادارے ہیں، کالجز یونیورسٹیز ہیں ان کے اندر، پبلک یونیورسٹیز کالجز کے اندر۔ اسی طرح جو ہمارے اسپیشل ایجوکیشن کا جو سیٹ اپ ہے، جو بچے ٹین ایجرز ہیں یا اپنے چائلڈہڈ میں ہیں، تو ان کے لیے پورے پاکستان کے اندر، اسی طرح خیبر پختونخوا کے اندر بھی اپنا ایک باقاعدہ اسپیشل ایجوکیشن کا سیٹ اپ ہے۔ وہاں پر ان بچوں کی اسکولنگ جو ہے کمپلیٹلی فری ہے، اور بعض جگہوں پہ پک اینڈ ڈراپ سروسز بھی ہیں، بعض جگہوں پہ ہاسٹل فیسلٹیز بھی ہیں، گو کہ اس لیول کی نہیں مگر ایگزسٹ کرتی ہیں، وہ موجود ہیں۔ تو اس سے پرسن ود ڈسیبلٹیز جو ہے وہ فائدہ لے سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ٹرانسپورٹیشن ہے، ٹرانسپورٹیشن کے اندر بھی پرسن ود ڈسیبلٹیز کے لیے
50% कंसेशन अनाउंस्ड है, मगर ये वो फैसिलिटी है जो कि अभी प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेड नहीं है। नहीं। ट्रांसपोर्टेशन में अगर आप देखें तो हमारी रेलवे में जो हमारी पब्लिक ट्रेन्स चलती हैं उसमें जो है तो आपके लिए 50% डिस्काउंट है, फेयर कंसेशन। और उसमें जो PIA है, PIA के थ्रू चल रहा है 40% पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए, और 25% उनके अटेंडेंट के लिए भी डिस्काउंटेड है, वो भी पर्सन विद डिसेबिलिटी अवेल कर सकते हैं। इसी के साथ साथ जो PWDs हैं उनकी अपर एज रिलैक्सेशन है, बोथ इन एडमिशन्स, किसी भी जगह यूनिवर्सिटी कॉलेज में अगर एडमिशन लेना है उसके लिए भी एज रिलैक्सेशन है 10 ईयर्स की, और जॉब के लिए भी 10 ईयर्स की एज रिलैक्सेशन है। इसके साथ PWDs जो हैं वो उनके लिए फॉरएवर जो है लाइफ टाइम फैमिली पेंशन है। अगर कोई भी PWD उनके पेरेंट्स जो गवर्नमेंट जॉब होल्डर रहे हैं और अगर वो उनकी डेथ हो जाती है तो उसके बाद ये PWDs अगर कोई भी हैं तो उनकी वो पेंशन जो है वो उन्हें लाइफ टाइम मिल सकती है। इसके साथ क्यू में एग्जम्पशन है, अगर कोई PWD किसी भी जगह जाते हैं, जैसे पब्लिक प्लेसेस हमारी जो ऑफिसेज हैं गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के, तो वहाँ पे अगर जाते हैं रो है किसी जगह पे वहाँ पे रश है तो PWDs को एग्जम्प्टेड है कि वो वहाँ पे उसमें। इसी के साथ BISP जो PWD जो वैसे तो है वो प्रोग्राम स्पेशली फॉर विमेन है, मगर उसके अंदर भी जो फैमिलीज ऐसी हैं जहाँ पर जिनकी फैमिली के अंदर विद डिसेबिलिटीज़ कोई भी लोग हैं तो उनके लिए जो उनका क्राइटेरिया है उसमें कुछ 5 to 10 पॉइंट्स की जो है रिलैक्सेशन है पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए। तो ये कुछ फैसिलिटीज़ हैं। इसके साथ कंपल्सन है इदारों के ऊपर, गवर्नमेंट की तरफ से तो कंपल्सन है कि एक्सेसिबिलिटी लाजमी हो ताकि हर PWD जो है वो इक्वली एक्सेस कर सके फिजिकली इंफ्रास्ट्रक्चरली भी, ताकि वहाँ पे रैम्प्स बने हुए हों, लिफ्ट्स इंस्टॉल्ड हों, ताकि PWDs जो है खुद वहाँ पे जाके अपना काम कर सकें। मैं मज़ीद ऐड करूँ चूँकि सहूलियात तो भी हैं जी, अगर आप देखें कि जो स्पेशली गवर्नमेंट जॉब के अंदर जो फर्दर जो है तो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए एक अनाउंस फैसिलिटी है कि दे शुड बी पोस्टेड एट द नियरेस्ट स्टेशन, और फिर इसके अलावा उनको वहाँ से वो डिस्टर्ब नहीं कर सकते, जहाँ पे वो एडजस्टेड हैं तो वहाँ से उनको जनरल बेस्ड ट्रांसफर्स नहीं हो सकती। सेकेंडली PWDs के लिए स्पेशली जो है 6000 स्पेशल कन्वेंस अलाउंस है, बिल्कुल, कि वो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज जब भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय होंगे तो उन्हें स्पेशल कन्वेंस अलाउंस 6000 रुपये गवर्नमेंट की तरफ से इन ऑल डिपार्टमेंट्स जो हमारे KP के अंदर, ये चूँकि अदर डिस्ट्रिक्ट्स में अदर प्रोविंसेस के अंदर डिफरेंट है, KP में जो है ये एग्जिस्टिंग 6000 रुपीज़, तो ये फैसिलिटी PWDs के लिए है। इसके साथ जो अभी KP सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की ने एक अच्छा स्टेप लिया है कि इनके लिए जो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की वेबसाइट है, अब इसके ऊपर ऑनलाइन अपनी असिस्टिव डिवाइसेस के लिए मीन कोई बैसाखियाँ इस्तेमाल करते हैं, स्टिक से यूज़ करते हैं, व्हीलचेयर्स की ज़रूरत है, व्यूअल एड्स की ज़रूरत है या हेयरिंग एड्स हैं, तो इन्हें ये एड्स जो है गवर्नमेंट की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट की जाएगी, और उन्हें जस्ट ये करना है कि ऑनलाइन अप्लाई करना है, और बिलखसूस पे CNIC सर्टिफिकेशन डिसेबिलिटी सर्टिफिकेशन जो है इसके लिए ये भी अब सर्टिफिकेट बनता है, ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे लोगों के अंदर इस चीज़ की आगाही देना बेहद ज़रूरी है, ताकि वो जो घरों में बैठ के बहुत मायूस होते हैं, बिल्कुल, तो कम से कम जो इस वक्त जो एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज़ हैं जी तो वो इनसे इस्तेफादा मुस्तफ़ीद हों। तो बाकी इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं कि मज़ीद जो इस वक्त पाइपलाइन में बहुत सारी चीज़ें। अच्छा बिलाल भाई, बाकी तो सारी फैसिलिटीज़ आपने बहुत तफसील से बयान कर दी हैं, मैं आपका बहुत मशकूर हूँ कि काफ़ी सारे लोगों को इसके हवाले से आगाही हुई होगी। एक और फैसिलिटी मेरे जहन में है जो कि मैं चाहूँगा कि आप उसके ऊपर थोड़ा सा तफसीली रोशनी डालें कि PWDs जो हैं मेरे ख्याल में 5 साल में या 10 साल में एक मरतबा एक ड्यूटी फ्री कार जो है तो वो इंपोर्ट कर सकते हैं पाकिस्तान में। उसका प्रोसीजर क्या है, उसके लिए रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, ये ज़रा हमारे PWDs को बताइए कि किस तरीके के साथ वो कर सकते हैं। पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए ड्यूटी फ्री कार है, और उसके लिए 1300 cc तक की आप गाड़ी मंगवा सकते हैं, और ये कंपल्सन है कि आप न्यू गाड़ी मंगवानी है,
0 मीटर गाड़ी 0 मीटर गाड़ी, जी हाँ। तो उसमें फिर जो उसके लिए PWD का अपना ड्राइविंग लाइसेंस होना ज़रूरी है, उसके लिए उनका टैक्स पेयर होना ज़रूरी है, उनका अपना NTN होना ज़रूरी है। सही। और ये अप्लाई करेंगे तो इसमें मिनिस्ट्री जो हेल्थ मिनिस्ट्री है वो भी इसमें इन्वॉल्व होगी, हेल्थ डिपार्टमेंट है, वो कॉमर्स की मिनिस्ट्री भी है। कॉमर्स भी इसमें इन्वॉल्व है। बहरहाल ये इन इट सेल्फ सबसे ज़्यादा जो ट्रिकी प्रोसेस है वो इसी फैसिलिटी का है। इसमें फिर ये होगा जो हमारे फिजिकल डिसेबिलिटी के साथ हैं, ये वही लोग इस फैसिलिटी को अरेंज कर सकते हैं। ठीक। फॉर द टाइम बीइंग एक ट्रिकी प्रोसेस है, इसके लिए कोशिश जारी है कि इसको मज़ीद इसके अंदर जो कुछ कॉम्प्लेक्सेस जो हैं तो वो ज़रा कम किए जाएं। बिल्कुल, बहरहाल इन इट सेल्फ एक फैसिलिटी है सही। फॉर द टाइम बीइंग। थैंक यू वेरी मच बिलाल भाई। अच्छा, अब मज़ीद में आपकी तवसत से मैं नाजरीन तक पहुंचाना चाहूँगा कि हमारा जो KP गवर्नमेंट है, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत, उसकी तरफ से कौन कौन सी पॉलिसीज़ का इजरा हुआ है पर्सनस विद डिफरेंट एबिलिटीज़ के लिए, उनकी फलाह बहबूद के लिए कौन कौन सी पॉलिसीज़ डिक्लेयर्ड हैं, और आया उनकी इम्प्लीमेंटेशन हकीकी मानों में ग्राउंड पर नज़र आ रही है कि नहीं आ रही सर? देखिए, पॉलिसी तो ऐसा है कि फिल वक्त जो हमारा जो डिसेबिलिटी एक्ट इम्प्लीमेंटेड है वो हमारा वही 1981 वाला एक्ट है। 81 वाला है, बिल्कुल। अभी तक बदकिस्मती से हमारा सूबा सबसे पीछे है बाकी पूरे मुल्क में, इवन GB में और इसमें ICT में, फेडरल टेरिटरी में भी हमारा डिसेबिलिटी एक्ट सबका बन चुका है। एक्चुअली इस तरह है कि UNCRPD, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, 2006 में जब हमने इस पे सिग्नेटरी हुए, फिर हमने इसे जब रेटिफाई किया 2011 में, तो ये हमारे ऊपर एक बाइनेंस थी कि हमारे मुल्क की जितनी भी पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ की लेजिस्लेशन है हमने उससे इनलाइन करनी है। आफ्टर 18th अमेंडमेंट जब ये सोशल वेलफेयर का जो चैप्टर है वो अंडर प्रोविंशियल कॉमर्स आया, तो उसमें फिर जो डिसेबिलिटी ऑर्डिनेंस था उस वक्त चूँकि तमाम चारों सूबों में, इस्लामाबाद में यही ऑर्डिनेंस इम्प्लीमेंटेड था, तो तमाम गवर्नमेंट्स ने इसे उसी के साथ विद माइनर चेंज इन इट्स नेम उसको अडॉप्ट कर लिया था। मगर फिर इसके बाद जब ये चीज़ हुई, इस ऊपर काम हुआ, पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ की ऑर्गेनाइजेशन ने काफ़ी इसके ऊपर जो है एडवोकेसी की गवर्नमेंट साइड्स पे, तो 2017 में सिंध में, 18 में सिंध में 17 में बलूचिस्तान में, 18 में सिंध में, और फिर 2020 में फेडरल गवर्नमेंट में, और फिर इसी तरह 2023 में जो है 22 में पंजाब गवर्नमेंट ने भी ये डिसेबिलिटी एक्ट बना लिया, GB ने भी। और बदकिस्मती से अब तक जो हमारा KP का जो डिसेबिलिटी एक्ट है वो पेंडिंग है, और वो अब तक जो है प्रॉपर नहीं पास हो सका, तो अब तक हम वहीं खड़े हैं जी, जो 81 वाला एक्ट है उसी पे चल रहा है। ठीक। अच्छा सर, एक छोटा सा सवाल और है, फिर हम वाइंड अप करेंगे कि जो सहूलियात आपने गिनवाई हैं, आया हमारे खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला में और स्पेसिफ़िकली ज़िला मानसरा में, सूबा खैबर पख्तूनख्वा में और ज़िला मानसरा में ये सारी सहूलियात मिल रही हैं हमारे PWDs को कि नहीं? देखिए, इसमें अगर हम स्ट्रेट अवे कहें तो इसमें तो मोस्टली ऐसी फैसिलिटीज़ हैं जो कि नहीं मिल रही। और मेरे जहन में आया कि फ्री हेल्थ फैसिलिटीज़ भी हैं, बिल्कुल, कि जितनी भी आपके पास गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर एग्जिस्टिंग जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं सब पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए फ्री हैं। मगर बदकिस्मती से जो हमारे इम्प्लीमेंट करने वाले ऑफिसर्स हैं, जो इदारे हैं, वो ख़ुद ही उन फैसिलिटीज़ से लापरवाह है, उनको इस हवाले से कोई आगाही नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया बिलाल साहब, आपने हमें आज वक्त दिया। और नाजरीन, आपने देखा कि PWDs के लिए, पर्सनस विद डिफरेंट एबिलिटीज़ के लिए, या अफराद बाहम माजूरी के लिए गवर्नमेंट ऑफ खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से कौन कौन सी सहूलियात मुहैया की गई हैं। अगर आपको इस बारे में इल्म नहीं था तो आज आपको अल्हम्दुलिल्लाह इसके बारे में इल्म भी हो गया है। और मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को, ये जो हम आवाज़ का ये प्रोग्राम है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, ताकि किसी भी घर में अगर अफराद बाहम माजूरी हैं, अगर उनके किसी रिलेटिव को भी ये प्रोग्राम मिल जाता है, वो अगर इसको देख लेते हैं तो उनको इस हवाले से बहुत ज़्यादा आगाही मिलेगी। बिलाल भाई, आप इस हवाले से आगाही के इस हम आवाज़ के प्रोग्राम के हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, मैंने अपने इंट्रो में ये चीज़ कही थी कि जो ये प्रोग्राम है, ये इसके बड़े लॉन्ग लास्टिंग इफ़ेक्ट्स हम देखेंगे कि लोगों के अंदर आगाही, चूँकि
ہماری ریچ، ہم تو وہ کام کرتے ہیں ظاہر بات، جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا. صحیح ہم بات. تو چار دیواری کے اندر آفیسرس کے ساتھ میٹنگز بھی کرتے ہیں، ان کے ساتھ جا کے بات چیت کرتے ہیں، مگر ایک جو منظم قسم کا پلیٹ فارم ہے، اور ہزارہ ایکسپریس نیوز کی بہت اچھی ریچ ہے، بہت زیادہ فالوورز ہیں ان کے، تو یقیناً اس میں جو ہمارے گورنمنٹ آفیشلز ہیں جن کے اوپر بائنڈنگز ہیں کہ انہوں نے یہ فیسلٹیز پی ڈبلیو ڈیز کو دینی ہے، تو وہ بھی اس سے موٹیویٹ ہوں گے اور وہ اپنی رسپانسبلٹی سمجھیں گے. تھینک یو ویری مچ بلال صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہم آواز میں آج ہمیں جوائن کیا. ناظرین آپ کا بہت بہت شکریہ، اور بھولیے گا مت کہ اس ویڈیو کو آپ نے ضرور شیئر کرنا ہے، ہمیں اپنے کمنٹ سے آگاہ کرنا ہے. اور دوسرا، پی ڈبلیو ڈیز پرسنز ود ڈفرینٹ ایبلٹیز، اگر آپ کو کوئی مسئلہ درپیش ہے اپنی زندگی میں تو ہم سے لازمی رابطہ کیجیے تاکہ ہم آپ کی آواز بنیں ہم آواز میں. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.